ध्यान वगैरह आपकी थियरी में है कि नहीं? अरे अच्छा अच्छा, थोड़ा प्रणाम कर लेते। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण आलोचो तव चरणे आलोचो तव चरणे जीवन में धरवा जय लक्ष्मी नारायण काले शक्ति विधानो ताव अजान जगे प्रभु ताव अजान जगे खेलकूद नूतनमा खेलकूद नूतनमा भूयो मुतुजनि जय लक्ष्मी नारायण यौवनमा अविवेमा सपरिणातो प्रभु मा सपरिणातो
मङ्गलं गरुडाध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय नमो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा वक्रेषु देवं संस्तदानुरमणं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आयेनमाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रवृत्ते स्वभावात् करोमि यस्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री लक्ष्मीनारायण देव की जय। श्री राम जी भगवान की जय। श्याम सुंदर यमुने महाराज की जय। गिरिराज करण की जय। ओम फतेह हर महादेव। उसने भी आरती अटेंड किया। क्या? उसने भी आरती अटेंड किया। वो प्रसाद खाती है। प्रसाद के टाइम पे आती है। वो बोल रही है मुझे भी आरती दो। उसको लक्ष्मी नारायण नहीं, लड्डू नारायण चाहिए। लड्डू खाएगी। जी बैठी बस मराठी मराठी ये है ये है उसका कभी भाग है। कितना खुश है, कितना खुश है। अभी मिलेगा। बहुत बढ़िया इंसिडेंट देखा
પ્રતાપાનંદ जी પધાર્યા છે, અનાયાસ આપણને એમનો લાભ મળે છે. થેન્ક્સ ટુ ભરતભાઈ આવ્યા આપણને ત્યાં. હવે હું એમને વિનંતી કરી હતી કે મને થોડા સત્સંગનો આપણને લાભ મળે એમનો પધાર્યા છે. એમનો મને તો હમણાં જ અલ્પ પરિચય થયો છે. ભરતભાઈને વિનંતી કરું છું કે સ્વામીજીનો પરિચય આપો. એ પહેલા જરા ભરતભાઈનો પરિચય આપો. એટલે હમણાં જ પરિચય થયો છે એમનો મારે. પણ એમ લાગે છે ઘણું જૂનું છે. એક વ્યક્તિત્વ એવું કોઈ તો એવા વ્યક્તિત્વ મળી જાય કે તરત જ આપણને એટ્રેક્શન થઈ જાય. સરસ છે. એમણે એક આ પુસ્તક આપ્યું હનુમાન ચાલીસા. આ માણસનું જે ઘડતર થયું છે એની પાછળનું સરસ આ જે પ્રોડક્ટ છે કેવી રીતે આવ્યું. એમણે આ એક બાળકો માટેની મેં તો કીધું કે વડીલોને પણ રસ દેવા જેવી વસ્તુ છે. અને ખરેખર એક હનુમાન ચાલીસાની ખાલી કલરિંગ બુક છે. એના એમણે કેટલા 40 ચોપાઈ છે. હનુમાન ચાલીસા એટલે 40 ચોપાઈ અને 3 દોહા એટલે 43 ચિત્ર બનાવ્યા છે ડિસ્ક્રિપ્શન માટે. જેમાં આમાં લખ્યું છે ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે રામચંદ્રજી કે કાલ સવારે. તો એના હિસાબે ચિત્ર બનાવ્યા છે. આવા બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ 43 ચિત્રો છે. એમાંથી 5 ચિત્રોમાં રંગ ભરીને અહીંયા છાપી દીધા છે. એટલે કોઈ મને કહ્યું કે કેમ 43 ને શું કામ ન રંગ ભર્યા? કીધું બચ્ચાને મનમાં પ્રેરણા મળવી જોઈએ કે આનું જોઈને આખી ચોપડીને ચિત્રવાનું પેન્ટ કરવાનું. અને એ સાથે સાથે નીચે હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં હનુમાન ચાલીસાની સ્ક્રિપ્ટ લખી છે અને નીચે ઇંગ્લિશનું ટ્રાન્સલેશન લખ્યું છે. કારણ કે અમે ઇન્ડિયાથી બહાર રહેનારા બચ્ચાઓ એ લોકોને એકચ્યુઅલમાં હિન્દી નથી આવડતી, ગુજરાતી નથી આવડતી. એટલા માટે ઇંગ્લિશનું ટ્રાન્સલેશન બી લખ્યું છે. જો કદાચ આનું પેઇન્ટિંગ કરીને અને આ ઇંગ્લિશનું ટ્રાન્સલેશન વાંચીને એ બચ્ચાના મનમાં થોડુંક હનુમાનજી માટે આદર ને ભક્તિભાવ થઈ જાય એ મારું રહેતું. મારા ગ્રેન્ડસનને હું શીખવાડવા માંગતો હતો. 7 વર્ષનો મારો દીકરો છે, અમેરિકામાં રહેતો હતો. અત્યારે એને આનું પહેલું ચિત્ર મને ઈમેલમાં મોકલ્યું છે રંગ ભરીને. એટલી ખુશી થઈ કે ચાલો મારું કામ સફળ થઈ ગયું. આવી રીતે મેં એમને કહ્યું હતું કે અત્યારે થોડી ચોપડી આવ્યો. એમને કહ્યું કે અહીંયા અનાથ આશ્રમ છે તો આપણે વધારે ચોપડીઓ સૌને આપશું. તો આ ઠાકુરમાં સ્વામીજીની કૃપા છે. સ્વામી તત્પરાનંદજી રામકૃષ્ણ મિશનનું નામ તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે. 178 શાખાઓ છે પૂરી દુનિયામાં અને સ્વામીજી એમાંથી એક શાખામાં કામ કરે છે, કાર્યરત છે. એકદમ આદિવાસી જગ્યા છે, અરુણાચલ પ્રદેશ સ્ટેટમાં નરોત્તમ નગર કરીને એકદમ જંગલ છે ઓલમોસ્ટ. તો ત્યાંના બચ્ચાઓ જે ઓલમોસ્ટ ચાઇનીઝ કલ્ચર એકદમ પ્રભાવિત થઈ ગયા છે. એમને સ્થાપના ધર્મ માટેની માને જોડવું, એમને શિક્ષા આપવી અને એમને કલ્ચર આપવું. એ લોકો બહુ એટલે જેને કહેવાય ને એકદમ વિગરસ પેલી હોય છે. એમને સંભાળવું 10મી, 11મી, 12મીના બચ્ચાઓને એને સંભાળે છે. આટલા વર્ષથી કામ કરે છે. તો મેં એમને બહુ રિક્વેસ્ટ કરી હતી મારી જોડે સારું પરિચય છે. એમને ખાસ એમની એક જ કન્ડિશન હતી, તમે મને મુંબઈની આસપાસમાં સારી જગ્યા દેખાડજો જે હું મારા બચ્ચાઓને જઈને પછી ફરીથી એમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. તો મારી રિક્વેસ્ટથી આવ્યા હતા. કાલે અમે લોકો ભીમાશંકર જઈ રહ્યા છીએ દર્શન કરવા માટે. તો પછી મેં મહારાજજીને કહ્યું કે આપણે અહીંયા સાત્વિક હોટલમાં બી રોકાઈ શકે. એટલે કીધું કોઈ સાત્વિક જગ્યામાં રોકાઈ જવું જોઈએ. એટલા માટે મુકેશભાઈ જોડે વાત થઈ હતી અને સાહેબે અરેન્જમેન્ટ કરી આપ્યું. હવે હું મહારાજજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ. મહારાજજી ગુજરાતી નથી બોલી શકતા, મહારાજ હિન્દીમાં આપણને આપશે. મહારાજજી આગે પ્લીઝ તમારી પ્રાર્થના है. एकदम हाँ मंदिर क्या लक्ष्मीनारायण भगवान जी के चरणों में प्रणाम. जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय. यहाँ उपस्थित
हमारे अधिकारीगण श्री भरत जी, डॉक्टर साहब साउथ अफ्रीका से जो आए हैं, और हमारे दुबे जी। थोड़ा आवाज तो जोर से, आवाज पीछे सुनाई नहीं दे रहा। माइक्रोफोन ले लिया अभी हमारा लाउड से, हाँ प्लीज ला 2 मिनट में, पीछे नहीं सुनाई दे रहा। आवाज नहीं आ रही है ना क्या? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो आ जाएगी। क्या है स्वामी जी, ये सब बड़ी उम्र के हैं, तो थोड़ा सा हियरिंग में भी फर्क इतना भी सबको थोड़ी थोड़ी तो अच्छा है हमारे साथ। दे दिया था ना, इतना रख लीजिए आवाज। जी यहीं पे जरूरत पड़ हेलो हेलो आवाज आई तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम। पूज्य हमारे जोशी जी, मेरा जी जोशी जी, भरत जी, हमारे डॉक्टर साहब और हमारे दुबे जी, जिनके कारण हम आज यहाँ पे हैं। और ये यहाँ पे जो स्थित स्थान पे जो लाया गया है, तो इनको सबसे पहले धन्यवाद देना तो आवश्यक है, बल्कि मैं सबसे पहले इन्हीं को ही इस चीज के लिए कृतज्ञ मानता हूँ। दूसरा, यहाँ पे जितने भी सज्जन लोग बैठे हैं, माता जी लोग बैठे हैं, सचमुच में देखें तो मैं ही उनसे कुछ सीखने की उम्र रखता हूँ। आप सबके पास इतने अनुभव हैं कि मुझे ही कुछ अनुभव आपसे मिल जाएं जीवन के, तो मैं तो बोलता हूँ कि उसी से मैं आने वाली जो पीढ़ी है उसको और कृतार्थ कर सकता हूँ। आप सबके पास इतने अनुभव हैं जीवन का, इतना सानिध्य आपने जितना अच्छे तरीके से पाया है। फिर भी भरत जी जैसे हमको विशेष रूप से बोल रहे थे कि स्वामी जी कुछ बोलने से अच्छा है। मैं इनको बोला था इस पूरे प्रवास में, पूरे यात्रा में हम कहीं प्रवचन का कार्यक्रम नहीं करेंगे। फिर भी उपनिषद में आता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो इसका अर्थ ये होता है स्वाध्याय और प्रवचन का कभी भी को करने में प्रमाद नहीं, आलस नहीं, किसी प्रकार की समय की कमी रहने पर भी आलस नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। तो मैं अभी समझ में आता है ईश्वर की विशेष रूप से मुझ पर कृपा है कि जोर करके ही स्वाध्याय कुछ करा दिया जाए। और प्रवचन करने का मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ जब हम वार्तालाप करते हैं, जिन अच्छे गुणों का हम चिंतन करते हैं वो प्रवचनकर्ता में भी आते हैं। तो इसके लिए भी, श्रोता के लिए भी और आने के लिए। तो अभी जैसे यहाँ उपासना हुई, हम जगह जगह जाते हैं, जगह जगह विभिन्न प्रकार की उपासनाएं होती हैं। अगर हम चर्च में जाते हैं तो उसका एक अलग प्रकार की उपासना है। हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, वहाँ भी मत्था टेकते हैं, क्योंकि हम जिस श्री रामकृष्ण देव के चरणों में आके पड़े हैं, वहाँ जैसे संन्यास मिला है, वहाँ हमने एक चीज देखी है कि किसी भी प्रकार की उपासना को नकारा नहीं गया है। हर एक घर में, हर एक मंदिर में, हर एक मस्जिद में उसी परम पिता परमात्मा को ही पुकारा गया है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो। भगवान श्री रामकृष्ण देव जिनका हम जीवन अध्ययन करते रहे हैं या जिनके चरणों में हम बैठे हैं, तो हमारे गुरुजनों से यही सीखने को मिलता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं कि सबसे पहले उनको ईश्वर को पाने की व्याकुलता, मन में एक व्याकुलता जागती है कि क्या ईश्वर है, अगर है तो मैं उसको देख क्यों नहीं पाता। लोग आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, वो बोलते हैं अरे ईश्वर है तो मैं खुली आंखों से देखना चाहूँगा, मैं बंद करके आंख बंद करके देखने का क्या, खुली आंख बंद करके जब मैं बंद किया तभी तो देखा, परंतु मैं खुली आंखों से ईश्वर को देखना चाहूंगा। ऐसे उनके मन में उत्कंठा थी, व्याकुलता थी, एक परेशानी थी, एक बीमारी यही थी कि मैं ईश्वर को नहीं देख पाता हूँ। उसके लिए उनकी ऐसी साधना, माँ काली की वो सेवा करते थे,
वो बोलते हैं माँ क्या पाषाण नहीं है, माँ की मूर्ति क्या पत्थर की मूर्ति है, क्या मैं पत्थर की पूजा कर रहा हूँ? ऐसी पूजा मैं नहीं कर सकता। ऐसा ईश्वर मुझको नहीं चाहिए। मुझे तो वो चाहिए जो सचमुच में चिन्मय हो, जो सचमुच में जिसको मैं बात कर सकूं, स्पर्श कर सकूं, जिस मैं भोग दे रहा हूं तो क्या वो लेते हैं। तो इस प्रकार की मन में एक उत्कंठा, एक आकांक्षा, एक इच्छा जब मन में रही तो वो व्याकुलता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उनके मन में ये एक आवेग आया कि अगर मैं ईश्वर का दर्शन ही नहीं कर पाया, अगर ईश्वर स्वरूप मैं अपनी माँ का दर्शन नहीं कर पाया तो अच्छा है, इससे मैं अच्छा है मैं अपने जीवन को विराम दे दूं, अपने जीवन का समाप्त कर लूं। अभी मैं अपने जीवन की यही लीला को समाप्त कर देता हूँ। कुछ आव देखा ने ताव देखा, मन में आया माँ तुम तो दर्शन नहीं देती है, तुम तो पाषाणमयी मूर्ति है, इससे इस प्रकार की जीविका, इस प्रकार के कार्य करने से मुझे क्या लाभ। और उन्होंने अपने मंदिर में जहाँ वो पूजा कर रहे थे और देखा आव देखा ने ताव, और जो माँ की जो कटार थी, जो माँ का जो हंसिया था उसको उठाया और अपने गले को रेत डालने के लिए चले। जैसे ही गले को काट डालने वाले थे, अभी इसमें ये बात ही सोचने की है, वो गले को काट डालना साधारण बात नहीं है, एक आत्महत्या नहीं थी, ये ग्लानि था। किस बात का ग्लानि? कि मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, इस बात के ना ग्लानि था। ऐसा नहीं था कि कर डालो, मुझे कुछ नहीं मिला मैं करता। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही उठाया और अपने गले को सचमुच में ही वो इसी विष्णुता के कारण निकाल देने वाले थे कि उनको श्री श्री माँ काली का दर्शन होता है। माँ काली का दिव्य दर्शन किस प्रकार होता है? वो बोलते हैं कि मैंने एक ऐसे तेज पुंज का दर्शन किया, ऐसे एक दिव्य स्रोत का दर्शन किया जिसमें प्रकाश के अलावा और कुछ था ही नहीं। तो उसी को माँ काली का वो दर्शन बोलते हैं। परवर्ती काल के जीवन में वो बोलते हैं कि कैसी माँ काली कैसी है, क्या वो काली है कि पीली है, क्या है माँ, तुम्हारा रंग कैसे जाने, सदानंद नहीं तुम्हारा मन कैसे मैं पढ़ूं, इस प्रकार के वो गाने बाद में गाते हैं। तो बोलते हैं जैसे बहुत बड़ा एक जलाशय है, दूर से देखने से एक जलाशय दिखाई देता है, उसका रंग कैसा है, उसको दूर से देखते हैं तो उसका रंग नीला लगता है, कभी काला लगता है, कभी हरा लगता है, इस प्रकार का जलाशय का रंग लगता है। तो वो बोलते हैं जब मैं पास में जाता हूँ तो कैसा हो जाता है, हाथ में उठाता हूँ तो क्या होता है, कोई रंग नहीं रहता, किसी प्रकार का रंग नहीं है। जलाशय का पानी जो दूर से मुझे नीला दिखता था, किसी प्रकार का रंग नहीं। बोलते हैं मेरी माँ काली तो ऐसी है, दूर से ऐसी दिखती है, परंतु जब मैं पास में जाऊं तो कोई रंग नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही दिव्य दर्शन प्राप्त किया था कि और उसमें माँ का कोई रंग दिखाई नहीं देता। माने हमारा जितना भी उपासना पद्धति, जितने भी धर्म आज समाज में है, जितने भी प्रकार के विश्वास आज समाज में है, वो उसी परमात्मा को प्राप्त करने का है जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, परंतु वो एक दिव्य चेतना है, दिव्य सत्ता है। और इतनी उपासनाएं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कहते हैं कि इतने सब ज्ञानी जन गुणी जन जितनी भी उपासनाएं कर रहे हैं वो एक ही सत्य की उपासना के लिए है, वही हमारी उपासना है। हम जितने भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं उसके पीछे में उसी एक ही देवी सत्ता को देखने के लिए हमारे उपनिषदों ने आज्ञा दी है। पूरे उपनिषद में सब समय में उसी दिव्य प्रकाश को, उसी अमृत तत्व का संधान के बारे में बोला गया है। बार बार स्वामी विवेकानंद भी बार बार बोलते हैं अमृतस्य पुत्रः, बोलते हैं यू आर द इमॉर्टल, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। हमारा जो शरीर, हमारा जो स्वरूप, हमारा जो नाम कितने दिन के लिए, परंतु अगर किसी का शरीर जब चला जाता है तो क्या हम उसको रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ हो गया है, उसके अंदर की जो चेतना जो हमको आकर्षित करती थी वो उस जड़ शरीर में नहीं। तो असली आकर्षण, असली तत्व किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या है जो हमको आकर्षित करता है? वो है जड़ चेतन को छोड़ के उसके परे में जो सचमुच में जो चेतन सत्ता वहां पे खेल रही है, हम उसी की पूजा करते हैं। यहाँ बैठ के हम मूर्ति की उपासना करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूज्य हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, नहीं कि हम बुद्ध की उपासना करते हैं। नहीं, हम जैसे
भरत जी ने जैसे बताया हम अरुणाचल प्रदेश में हैं, तो हम आपको बताते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आदिवासी लोग जरूर हैं, परंतु उन लोगों को वहाँ के कुछ दूसरी संस्थाओं ने उनको उनके जो अपने आदिवासी धर्म और उनके प्रकार के जो विश्वास है उसको छोड़ करके दूसरे विश्वास में उनको परिवर्तन करने का बहुत प्रयास किया, दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का बहुत प्रयास किया। तो वो लोग हम लोगों पे विशेष रूप से एक आक्षेप देते हैं। हमारे सामने तो बहुत बार आमने सामने आक्षेप आता है कि स्वामी जी आप लोग तो बुत परस्त हैं, आप लोग तो ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जो तो मरा हुआ है। कैसे मरा है? वो तो पत्थर है, पत्थर की पूजा करते हैं। हम तो उस जिंदा आत्मा की उपासना करते हैं। तो हम यही जवाब देते हैं कि देखो सज्जन, असली बात तो यही है कि हम उसी देवता, उसी ईश्वर की ही उपासना कर रहे हैं जो निराकार है। हिंदू धर्म का सबसे उच्च तत्व है ईश्वर सभी में है। स्वामी विवेकानंद बंगला में एक कविता लिखते हैं, बहुरूपे सम्मुखे तोमार छाड़ी कोठाए खुजी छे ईश्वर। बोलते हैं कि इतने रूप तुम्हारे सामने में ईश्वर के बैठे हैं, तुम उन सबको छोड़ करके उस भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना कि गंगा नदी जा रही है, उसको वहां नदी के किनारे कोई कुआं खोद रहा है। तो हम जब निराकार की उपासक हैं, हम जब उस मूर्ति पूजा के पीछे में जो चेतन तत्व है उसकी उपासना करते हैं, तो हम बुत परस्त कैसे हुए? यही बात हम उनको बीच बीच में सिखाते हैं। मैं इसलिए ये कुछ बातें इसलिए बताता हूँ कि ये जो हमारा अंचल है इधर का, पश्चिम भारत का, दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का, मध्य भारत का, उस सब में ईश्वरीय भाव इतना घनीभूत है चारों तरफ कि कहीं भी आप अपनी उपासना करेंगे किसी प्रकार का आपको विडंबना या किसी प्रकार की कोई आपको समस्या सामने में नहीं आती। परंतु उधर का जो भाग है, जो एकदम पूर्वी भाग है भारतवर्ष का, वहां पे इस प्रकार की संभावनाएं बहुत ही कम है। वो लोग अलग प्रकार की उपासना करते हैं, हिंदू धर्म से परिचय ही नहीं। तो इस प्रकार में कुछ बातें इसमें भी आ जा रही है। फिर उसके बाद मेरे मन में ये भी आया था, भरत जी बार बार बोल रहे थे श्री माँ शारदा देवी के बारे में भी कुछ बोलिए। तो ये एक बात ये आ गई कि हम लोग जो है उस चैतन्य सत्ता के ही अंग हैं जिससे ईश्वर स्वयं आ रहे हैं। बार बार उपनिषद यही बोलता है कि हम उसी ईश्वरीय सत्ता के अंग हैं। ये बार बार अपने हृदय में मान लेना होगा कि ऐसा क्या है, क्यों मैं इस शरीर के प्रति आकर्षण है। असली आकर्षण ईश्वर का ही। महाभारत में भी आप देखते होंगे, एक जगह आता है, अहन्यनी भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः। आपने ये शायद युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में ये चीज आती है। वो पूछते हैं कि आश्चर्य किस चीज का है युधिष्ठिर, तुम मुझे बताओ। वो बोलते हैं अहन्यनी भूतानि, क्योंकि रात और दिन हम चारों तरफ अपने आसपास देखते हैं कि लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु जो लोग बचे हैं वो कभी भी उस मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार की आशा में जीवन से अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, लगाव में फंसे। तो ये है एक बहुत बड़ा आश्चर्य। चारों तरफ देख रहे हैं, एवरीथिंग इज हैविंग थ्री स्टेजेस, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। फिर भी हम देखते हैं आज एक पेड़ है, कल ये पेड़ गिरेगा, आज एक बिल्डिंग है। देखो अमेरिका का भी वर्ल्ड ट्रेड टावर कभी सोचा ही नहीं था किसी ने, वो भी मिट्टी में मिल गया। तो हर एक वस्तु का कुछ न कुछ अंत है ही, परंतु कोई ईश्वर प्राप्ति की तरफ जाने के लिए सोचता ही नहीं। कोई एक हमारे स्वामी जी बहुत बोलते थे कि देखो बेटा, सभी लोग उपासना करने के लिए ईश्वर को पाने की सोचते तो हैं, परंतु ये अटैची कोई छोड़ता नहीं। अटैची का मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? हमारे पुत्र, हमारी संपत्ति, हमारे पत्नी और ये सब तो रहते ही हैं, उन सब का निर्वाह करना है, परंतु अटैचमेंट उनके साथ नहीं रहना चाहिए। एक यही मानना है कि ईश्वर ने मुझे ये सब दिए हैं उन्हीं की सेवा करने के लिए। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं घर में रहना है उस बड़ी मालकिन की दासी के रूप में,
मेरा राजू, मेरा पिंटू, मेरा संटी, मेरा बंटी, परंतु वो जानती है कि वो जो बेटा है वो मेरा नहीं, वो किसका है, वो मालकिन का है, मेरा बेटा तो वहां पे, उसका मन तो सब समय वहां पे। तो मन जो है इस प्रकार से रखना है कि ये सब मेरे शरीर से, मेरे जेनेटिकल सिस्टम से जरूर पैदा हुए हैं, और मैं भी, ये शरीर भी मुझे अपने पिता पूर्वजों से मिला है, परंतु ये भी तो नहीं है, एक दिन तो सब छूट ही जाएगा। बहुत अनंत काल तक हमारे पास समय है। सचमुच ऐसा ही है। स्वामी विवेकानंद एक जगह बोलते हैं कि वाई आई एम वरीड टू गेट द टेस्ट, आई एम हैविंग सफिशिएंट टाइम टू स्क्विज द ऑरेंज, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। क्यों? वो बोलते हैं कि हमारा जीवन तो अनंत जीवन। तो इस प्रकार की बात जब आ रही थी कि हमको संसार में कैसे रहना चाहिए, श्री रामकृष्ण देव एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि 2 हाथ से काम करो। कैसे? 2 हाथ में एक हाथ कैसे लगाना है? एक हाथ से भगवान को पकड़ो, एक हाथ से संसार का काम करो। और फिर कहते हैं जब तुम्हारा संसार का काम खत्म हो गया, दोनों हाथ से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ताकि बोलते हैं भगवान का जो चरण है उसको अपने रेशे से, रेशम की डोरी से बांध के एकदम ऐसे बांध दो कि वो जहाँ जाए मैं भी वहां आ जाऊं, एकदम ऐसा 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 ऐसा। फिर बोलते हैं संसार में रहने का कैसा, जैसे कि पेड़ का सूखा पत्ता जैसे रहता है वैसे मैं संसार में रहूंगा। कैसे? वो मुझे जिस किसी भी परिस्थिति में रखता है वैसे मैं रहूंगा। जैसे बिल्ली को देख के एक उदाहरण और मुझे याद आया, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं बिल्ली अपने बच्चे को कहाँ कहाँ नहीं रखती, परंतु बिल्ली का बच्चा क्या करता है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बस इतना ही जानता है। वो बोलता है म्यू म्यू बोलता है कि मेरी माँ आ गई है, वो मुझे जहाँ रखेगी। परंतु एक जो दूसरा एक उदाहरण देते हैं बंदर के बच्चे। बंदर के बच्चे में क्या होता है? ठाकुर जी बोलते हैं कि बंदर का बच्चा अपनी माँ को खुद पकड़ता है, और बिल्ली का बच्चा क्या होता है? माँ उसको पकड़ती है ना। तो हमको भगवान का बच्चा बनने के लिए बिल्ली के बच्चे के जैसे रहना है। माँ मुझको जैसी चाहे जगह में रखेगी, मैं वहां वैसे में आनंद में रहूंगा। पेड़ का सूखा पत्ता माने कैसे? ये जो पेड़ का पत्ता जब गिरता है जमीन पे, कभी पेड़ पे है सूखा है, गिरा है, इधर गया उधर गया, गिर गया, चूर्ण हो गया, कुछ भी हो गया, उसका खुद का कोई भी इसमें अटैचमेंट नहीं। इसका अर्थ क्या है? छोटी सी कहानी जो रामकृष्ण देव बोलते हैं साधारण बात नहीं है, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ जो गीता में आता है, भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं अर्जुन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित थी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत की। बोलते हैं एक आदमी जो संसार से अटैच नहीं है, एक आदमी जो सचमुच में जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई, माने स्टेडीनेस हो गई, ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण है? सब उसमें गीता में वो बार बार बोलते हैं, यदा संघरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वतः, जो अपनी इंद्रियों को कछुआ के जैसे समेट लेता है अपने अंदर। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें उनकी जो इंद्रियां हैं किसी प्रकार के आकर्षण को देख के ही वो अंदर में समेट में आ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि ईश्वर में स्थित हो गई है, बोलते हैं कि उसका किसी भी प्रकार से आकर्षण संसार की तरफ रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको अचल आनंद की प्राप्ति हो गई है। संसार का अर्थ क्या होता है? सरती इसी संसार, जो सरकता जाता है, जो मिटता जाता है, जो चलता रहता है। तो सामने में अभी जैसे हम लोग वहां गए थे नेहरू प्लेनेटोरियम, तो वहां पे भरत जी एक टेलीस्कोप लेके हमको दिया, तो उसमें देखा कि चंद्रमा अभी जैसे दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है, परंतु जब टेलीस्कोप से देखते हैं चंद्रमा भी घूम रहा है, एक पल के लिए भी वो खड़ा नहीं है। अच्छा, और जो टेलीस्कोप जहाँ रखा है, टेलीस्कोप भी जब आप कहेंगे 1 मिनट के अंदर भी टेलीस्कोप से चंद्रमा गायब। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सरक नहीं है। हमारे सामने ऐसे चित्र आता है कि एकदम ठीक है, यही एकदम परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। नहीं, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पूरे जगत में कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है। पूर्ण से आया जरूर है, परंतु पूर्ण का
प्रकाश किसमें है? जड़ में है। तो जड़ तो पूर्ण नहीं हो सकता। तो पूर्ण क्या है? वो चेतन शक्ति है। वही एक चेतन तत्व, वो श्री रामकृष्ण देव उसको माँ काली के रूप में देखते हैं और उसी को वो श्री श्री माँ शारदा में स्थानांतरित करते हैं, उसी को श्री श्री माँ के अंदर जागृत करते हैं। आपने श्री श्री माँ शारदा देवी के बारे में जरूर पढ़ा होगा ना? क्या नहीं पढ़ा होगा? तो ये शायद इसमें नई नई घटना लग रही है, मुझे भी उसी प्रकार से समझ में आ रहा है, तो उसी प्रकार से मैं बहुत हल्के हल्के तरीके से ही बता देता हूँ। श्री श्री माँ शारदा देवी जो है, आपने अब अभी कलकत्ता तो गए होंगे आप लोग, बेलूर मठ देखा होगा, तो वहाँ बेलूर मठ से ही जयराम बाटी, कामारपुकुर, ये तो बहुत बड़े तीर्थ स्थान है स्वामी विवेकानंद भावधारा जो आते हैं उनके लिए। वो ऐसा है कि कामारपुकुर जो जगह है वो भगवान श्री रामकृष्ण देव का जन्म स्थान है और जयराम बाटी जो है वो श्री श्री माँ शारदा देवी का जन्म। तो जैसे आगे के समय में स्वयंवर होता था, जिसको बोलते हैं कि कन्या जो है अपने भावी पति का चुनाव स्वयं करती है। तो ऐसा ही होता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव सीहोर गए थे। सीहोर वहाँ भी एक जगह है, जगह का नाम है, वहाँ माँ का एक ऐसा बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे बहुत बड़ा उपासना और इस प्रकार के कीर्तन भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पे श्री श्री माँ शारदा देवी, उनका बचपन में नाम था क्षेमकरी, सुभनकरी, इस प्रकार से सारू बोलते थे। तो वो भी वहाँ पे सबके साथ थी, अपनी माँ की गोदी में थी। तो हुआ क्या कि जैसे छुटपन में बोलते हैं, जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं छुटपन में बोलते हैं, अच्छा सारू तुम किससे विवाह करेगी, किसके साथ ऐसे बच्चे आपस में बोलते हैं। तो उन्होंने उस समय में श्री रामकृष्ण देव वहीं थे, तो उनका नाम उस समय गदाधर चट्टोपाध्याय, उनका नाम था गदाधर। जो विष्णु जी का है गदा पकड़ के रखा है कि कोई बदमाशी करेगा समाप्त। तो ऐसे जो गदाधर हैं, तो उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। तो होता क्या है कि श्री श्री माँ शारदा देवी से पूछा तो उन्होंने उनकी तरफ दिखा दिया, उनके साथ विवाह करेगी बचपन में। उस समय उनकी उम्र थी 24 साल की। हम लोग हिंदी समझ रहे हैं तो हमारी ठीक है, तो हिंदी समझ आ रही है? देखो जब भी नींद आए मुझे बता दीजिए, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि बोलने का मौका मिलता है तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने वाले इतने लोग भी नहीं है, कभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। सुनते नहीं है तो लोग, और आप लोग तो सुनते सुनते ये हो जरूर, हम तो समझ लिए हैं कि हाँ चलो कुछ तो एक अच्छी बात हो रही है, बच्चे लोग तो नहीं सुनेंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि इस प्रकार से उनका स्वयंवर वो उन्होंने खुद ही कर लिया। अभी इसके बाद बताओ कि वहां पे कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय ढूंढते हैं कि कहाँ पे इस गदाधर के लिए विवाह करने के लिए कोई मुझे कन्या मिल जाए, कैसे ढूंढूं, क्या करूं। तो गदाधर स्वयं माने भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं बोलते हैं कि वहां पे जयराम बाटी में मेरे लिए कन्या चिन्हित करके रखी गई है। वो ये भी दिव्य लीला है, आप देखिए कितनी बड़ी दिव्य लीला। वो उन्होंने बचपन में इशारा किया कि उसके साथ विवाह करेंगी, इन्होंने अपने पिता को बताया कि मेरे लिए कन्या उधर रखी गई है। ऐसा नहीं है कि पहले कहीं मिल, आजकल जैसे आजकल के जमाने में हमारे लड़के हैं स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में, वैसा कुछ है ही नहीं। फिर भी एक स्वयंवर की कथा यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही श्री राम जी के जीवन में देखते हैं, श्री कृष्ण जी के जीवन में देखते हैं। वही चीज मैं इसके साथ इसलिए मिला रहा हूँ कि श्री रामकृष्ण देव ने अंतिम काल में स्वामी विवेकानंद को बोला था कि जो राम थे और जो कृष्ण थे वही इस युग में राम कृष्ण होके आए। ऐसा करके उन्होंने ये आदेश दिया था कि जो राम है वो भी सत्य है, जो कृष्ण है वो भी सत्य है, और जो रामकृष्ण है अगर ये सत्य है तो वो भी सत्य है। ये भी बता दिया। वो पहले भी भगवान वहां पे श्री राम के रूप में आए हैं, श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, और अभी रामकृष्ण के रूप में आए हैं। ऐसा उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक बार बोला था। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि ये स्वयंवर की कथा वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद में उन और एक उसके थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि उनके जन्म की जो बात होती है, उनके पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय तो गया जी जाने की व्यवस्था करते हैं विष्णु जी के पास में। तो अपनी धर्मपत्नी को बोल के जाते हैं कि हम जाएंगे वहां, ऐसा। तो रास्ते में क्या होता है, उनको विष्णु जी का एक विशेष प्रकार से दर्शन होता है। एक विष्णु शिला एक
जो है वो बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसा ऐसा है, तुम वहाँ से उसकी मत लेके पूजा करो, वहाँ जाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की एक घटना उनके पिताजी के साथ होती है, सुधीराम जी का। इधर में क्या होता है, घर में कामारपुकुर जो ग्राम है, जो घर है, वहाँ पे जो उनकी माँ है चंद्रा देवी, उनको क्या होता है, वो अपनी एक दासी थी, या उसको बोल सकते हैं उनके घर में काम करती थी, या उनकी एक सहेली थी, एक लोहारिन थी, लोहारिन उसका नाम था धनी। तो वो उनके साथ भ्रमण कर रही थी। तो उनके घर के पास ही आज भी एक शिव जी का मंदिर है, उसको बोलते हैं जुगी शिव का मंदिर। माने जुगी लोगों ने, जैसे अग्रवाल से अस्पताल, तो अग्रवालों ने अपने उन लोगों ने जो अस्पताल बना दिया उनके नाम से हो गया, जैसे बिरला जी ने जिसे बना दिया। तो जुगी शिव मंदिर एक था, जुगी लोगों ने कुछ बनाया था बता। तो होता क्या है, शिव जी का मंदिर है, वो सामने से जाती है, तो शिव जी के मंदिर से देखती है कि एक प्रकाश आता है और उनके उदर में समा जाता है, और उनको लगता है कि वो गर्भस्थ होती है। जब गर्भस्थ होती है इसलिए तो उनको तो निश्चित रूप से पता चलता ही है, हमारा तो स्त्री शरीर नहीं है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो उस प्रकार से उनके मन में लगा, तो उन्होंने धनी लोहारिन को बोला कि अरे लगता है ऐसा, तो उन्होंने बोला आपके वो स्वामी आने तक थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। तो वो वापस लौट के आते हैं, तो उनको भी देखते हैं, उनकी पत्नी जो बोलती है कि इस प्रकार से ऐसा हुआ, तो वो बोलते हैं कि जरूर हमारे यहाँ भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आएंगे, हमारे यहाँ वो जरूर जन्म देंगे। इस प्रकार की घटना उनके घर में होती है। ऐसा ही श्री माँ शारदा देवी का होता है। उनकी जो माँ है श्यामा सुंदरी, वो शौच के लिए पहले जैसे जंगल में जाते थे, करवा लेके लोटा लेके, वैसे जाके शौच से निवृत्त होके आ रही थी, तो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, तो देखा कि वो ऊपर पेड़ पर से, जो ऊपर का जो पेड़ है उससे उतर के एक बालिका लाल रंग के वस्त्र में आके उनके गले में लिपट जाती है। बालिका का चेहरा देखिए लग रहा था कि वो एक दिव्य स्वरूपा कन्या है। वो जब आके उनको लिपटती है तो बोलती है कि माँ मैं तुम्हारे घर आऊंगी, और ऐसा करके उनको कुछ समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या, और उनको लगा कि वो गर्भवती हुई। ये श्री माँ शारदा देवी के जीवन से पहले की घटना। तो ये कुछ अलौकिक घटना है जो मैं आपके सामने बोल रहा था। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद के जीवन में होता है। स्वामी विवेकानंद की जो माँ है भुवनेश्वरी देवी, और उनके पिता है विश्वनाथ दत्ता, तो वो तो एक बहुत ही अच्छे सम्भ्रांत परिवार से थे कलकत्ता के। उनके पिताजी तो वकील रहे थे, बहुत बड़ी बैरिस्टर, और इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी उनकी कंपनी थी काम करने की। तो भुवनेश्वरी देवी जो है लड़का चाहती थी, ऐसा लड़का जो मैंने उनके कुल का नाम रोशन करे, और वो उनकी एक आस्था थी भगवान शिव के ऊपर। शिव की बहुत बड़ी उपासक थी और धर्मशिला धर्मप्राणा माता जी थी। तो वो जो है उनकी एक रिश्तेदार जो है काशी वाराणसी जो जगह है, वहां पे आप लोग गए होंगे, वाराणसी तो गए होंगे सभी लोग। तो काशी में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये मंदिर है, वीरेश्वर मंदिर, वीरेश्वर शिव का मंदिर है। आप देखेंगे लक्ष्मी मंदिर जाने से पहले वो वीरेश्वर शिव का मंदिर वहाँ पे। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला, एक मन्नत मांगी कि मुझे एक पुत्र संतान चाहिए, एक पुत्र चाहिए, तुम मेरे लिए वहाँ फूल चढ़ाओ। तो उन्होंने वहाँ पे फूलें चढ़ाई, और यहाँ पे जो है इनका भुवनेश्वरी देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये पहले की बात। तो श्री रामकृष्ण देव उस समय तो बहुत बड़े थे। उन्होंने बोला परवर्ती काल में कि मैंने देखा कि जब नरेन का जन्म होता है तो मैंने देखा कि वो काशी से एक बहुत प्रकाश का एक पुंज आकर के कलकत्ता के सिमुलिया इलाके में जाके ठहरा है, वहां रुका है। तभी मुझे समझ में आ गया कि वहां पे उसका जन्म हुआ है। श्री रामकृष्ण देव बाद में बताते हैं कि इस प्रकार से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ है। श्री रामकृष्ण देव की एक और चीज बताते हैं कि जो सप्त ऋषि, जो हम सब तारा मंडल जो देखते हैं, तो उनकी एक घटना बताते हैं कि ऐसे सप्त ऋषि बैठे हैं, और उसमें एक ऋषि के पास में एक बालक आता है अद्वैत के घर से। माने अद्वैत का घर क्या होता है? निराकार। निराकार एक बालक आता है, एक बालक आके उनके गले में झूमता है और बोलता है
कि मैं पृथ्वी पे जा रहा हूँ, तुम भी रहो। ऐसा करके इस प्रकार से एक दिव्य दर्शन वो अपना एक बताते हैं भक्तों को। तो जब वो पृथ्वी पे आने की बात बोलते हैं तो बाद में बताते हैं कि जो वो छोटा बालक था जिसने जो अद्वैत के घर से माने निराकार के घर से ये रूप लेकर के बालक के रूप में जो आता है पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, वो भगवान श्री रामकृष्ण देव थे। और जो ऋषि सप्त ऋषियों में से एक जो ऋषि बैठे हैं वो स्वयं स्वामी विवेकानंद थे। इस प्रकार की उनकी दिव्य कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा था, क्योंकि उनकी दिव्य अलौकिक जीवन पूरा भर्ती है। इतना कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, इसके लिए विडंबना हो रही है। तो इसलिए कुछ कुछ बातें जो समय सीमा में रहेंगी बोलता जाऊंगा। जैसे ही आपको लगे कि हम समय पार करें, आप मुझे सिग्नल दे दीजिए, स्टॉप, ऐसे हम चुप कर दीजिए। तो ऐसा है ना, बच्चों को चुप करने के लिए करना पड़ेगा। आप सब बुजुर्ग हैं, मुझे ऐसे बोलेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। तो ये आंख दिखा दीजिएगा, हम अपनी माँ के ऐसे आंख करने से डरते थे, तो ऐसे कर देंगे हम, ठीक चुप हो जाएंगे। ऐसे कोई समय का ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, अभी खाना खाने का समय हो गया ठीक है। भूखे पेट भजन न मेरे को खाना, ये बात ठीक ठीक वो मेरे को बोलना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब एक श्री रामकृष्ण देव की एक बात बोल के समाप्त करूंगा कि हम लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि सत्संग की कोई भी बात जो है हम लोगों को गाय की तरह ले लेना चाहिए। गाय क्या करती है कि पहले खा लेती है एक साथ, कबड़ 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 खा रही है, और बाद में क्या करती है, चबाती है। कहाँ? अकेले में बैठ के आराम से बैठ। तो हम लोगों को जो भी मेरे मुख से जो भी कुछ अच्छी बात अगर आपको निकली हो, आप तो रात दिन सत्संग करते हैं, टीवी में भी देखते हैं, आपस में भी कुछ पढ़ते हैं, इतना यहाँ पे धर्म प्रचार है चारों तरफ, तो जो भी बात आपको अच्छी लगे उसको क्या करना, चपट 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 चबाते रहना है ना। तो इसमें तो दांत की भी जरूरत नहीं है, एक उम्र में दांत नहीं होना भी चलेगा। तो इस वाली कहानी में दांत की जरूरत है। दांत माने हमको फिजिकल तरीके से किसी प्रकार का एफर्ट नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है? यहाँ पे मन ही मन में, क्योंकि मन की शुद्धि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये एक बात हो गई। और दूसरी एक बात है कि श्री कृष्ण जो है गीता में एक जगह बोलते हैं, इस प्रकार की बात में पढ़ी पढ़ते चलेगा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा। आप सुने हैं ना क्या? बोधयंत्र परस्परम, इस प्रकार की जो बात है, जो मेरे जीवन की चर्चा रात दिन करते हैं, उसी में डुबकी लगाते हैं, उसी का ही चिंतन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं भी कुछ देता हूँ। क्या देता हूँ? बोलते हैं ददामी तम बुद्धि योग। वो जो बुद्धि योग है, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे उनके संशयों का विनाश होता है। तो ऐसा है कि हमको ईश्वर से कुछ चाहिए ना चाहिए वाली बात नहीं है। प्रलोभन हमको उसी का चिंतन करते रहने से क्या होता है, उसी प्रकार की बुद्धि का विकास होता है। तो ये जो चीज है, इस प्रकार की बुद्धि हमको प्राप्त हो, जो श्री अर्जुन को भी प्राप्त हुई है। हम सभी उसी के लिए चिंताग्रस्त हैं कि हमको भी वो सद्बुद्धि प्राप्त हो। जैसे उपनिषद में बोलते हैं, असतो मां सत्कर्मय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम यहाग्नेर्धारिका शक्ति रामकृष्णे सिताया सर्व विद्या स्वरूपांता शारदां प्रणमाम्यहम्। स्वामी जी पहले मैं जरा विनती की, कुछ कहिए, कुछ हमको बोल दीजिए। अरे मैं कुछ जानता नहीं कहने का, कुछ बातें तो करेंगे। सुंदर बहुत बातें की, बहुत प्रभावी लिखते की। हम भी बच्चे ही है सब, जैसे बच्चों को आप बातें करते हैं, सिखाते हैं, वहाँ उनको भी उसका लाभ मिला है, तो बहुत आनंद हुआ। स्वामी जी से मैं कुछ ज्यादा तो नहीं समझता हूँ, एक बात कुछ समझ में नहीं आई। स्वामी जी ने कहा एक हाथ से भगवान को पकड़ो
दूसरे हाथ से संसार को पकड़ो, धीरे धीरे संसार छूट जाएगा, दोनों हाथ में भगवान आ जाएंगे। लेकिन स्वामी जी बात ये है, दोनों हाथ से संसार को पकड़ने जाते हम तो भगवान छूट जाते, तो फिर भगवान यहाँ थप मार के गदा क्यों नहीं मारते? बताता हूँ। ये आप ठीक बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं कि रानी रासमणी थी एक, रानी रासमणी जो जिन्होंने माँ काली का मंदिर बनाया था, बेलूर में है। आप जब गए होंगे रानी रासमणी, वो माँ काली के मंदिर में, दक्षिणेश्वर जिसको बोलते हैं। तो रानी रासमणी ने मंदिर तो बनाया और भगवान श्री रामकृष्ण देव वहाँ बहुत अच्छा गाना गाते थे, जैसे भरत जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो उनका गाना सुनने के लिए वो जाते हैं। तो हुआ ये कि रानी रासमणी रानी रासमणी बैठी हैं और उनके भी सब जमींदार लोग बैठे हैं और वहां बैठी हैं, श्री रामकृष्ण देव गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, माँ काली का मंदिर खुला है, वहां पे माँ काली की आरती पूजा सब हुई है। और इन सब दोनों मतलब भक्त भागवत भगवान तीनों एक बोलते हैं, भक्त और भगवान एक ही है ना। जैसे किताब जो है पूंजी ज्योति गीता, भक्त भागवत तीनों उपस्थित है। फिर भी रानी रासमणी जो है वो क्या कर रही थी, उस समय उनके दिमाग में मुकदमे की बात याद आ रही थी कि वो मुकदमा है, ये है और वो है। तो उस समय श्री रामकृष्ण जैसे गुरु, श्री रामकृष्ण देव जैसे आचार्य वहां प्रस्तुत हैं, उनको एकदम से फ्लैश किया, उनको एकदम से दिखाई दिया कि रानी जो है इतनी सम्भ्रांत परिवार की महिला है, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे पास यहाँ आके भी ईश्वर का नाम सुनते हुए ईश्वर में मन नहीं है, और जाकर के एक तमाचा दे मारा, इतना जो भी काल पे एक तमाचा दे मारा। तो रानी तो भव्य महिला, एक सम्राट महिला, या जैसे प्रेसिडेंट की जो धर्मपत्नी होती है उनको फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन बोलते हैं, तो फर्स्ट लेडी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो उसको जाके थप्पड़ मार दिए और वो भी बोलेंगे कि तुमको मैंने नौकरी दिया, तुमको मैंने यहाँ रखा, तुम मेरे मंदिर का पुजारी, तुम मुझे थप्पड़ मारना, ऐसा रानी ने नहीं सोचा। रानी आसपास के जो लोग के जो चमचे टमाटर थे उनको भी किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करने दिया, रोका। और बाद में ये बात पता चली कि क्योंकि रानी का मन ईश्वर में नहीं था, उसका मन संसार में था, मंदिर में रहते हुए भी है कि नहीं। मंदिर में दिल्ली है, दिल्ली का मन किसमें है, लड्डू में है कि नहीं। तो हम लोग दिल्ली और कुत्ते रह जाएंगे अगर ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं जाए। अगर मान लो दोनों हाथ से संसार पकड़ना है तो साक्षी हुई चीज तो फिर भी पकड़ने नहीं आएगी, अपने आप छूट जाएगी। कितना पकड़ेंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे, या तो खुद छूट जाओगे या वो छूट जाएगी, है कि नहीं। या तो बच्चे उस माल को ले जाएंगे या आप जो लेने वाले हैं वो भी लग जाएंगे। तो ये वाली बात है। तो संसार को ठीक है, दोनों हाथ से अगर पकड़ना भी है तो एक अर्थ में उसका भोग कर लेना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में आता है, जो प्रथम पंक्ति है, ईशावास्य उपनिषद छोटा सा उपनिषद, और उसमें प्रथम पंक्ति ही ये बोलती है, ईशावास्यमिदं सर्वम, बोलिए कोई जानते हैं, यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, हाँ ये आ गई। अरे आप तो खुद भी उत्तर जानते हैं मुझसे क्यों पूछते हैं। तेन त्यक्तेन बोलते, अरे सब चीजों का ठीक है भोग किया जा सकता है, उपनिषद ने कभी प्रॉस्पेरिटी को मना नहीं किया है, कभी भी लक्ष्मी को दूर नहीं रखा है, कभी भी भोग को दूर नहीं रखा है, परंतु सबसे पहले हमारे जो भारतवर्ष का आदर्श है, त्याग को सबसे ज्यादा उसको सम्मान दिया है। आज आप मेरे पास क्यों आए हैं कि मैंने किसी चीज को त्याग करने का अभ्यास किया है या मैं त्याग के पथ पे चलने का अभ्यास करता हूँ। नहीं तो आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने बड़े लोग हैं कि मुझे आपके पास आना चाहिए। बताइए, आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप दो हाथ से कहाँ पकड़ेंगे, आप तो एक ही हाथ से पकड़ेंगे। और ईश्वर तो बोलते हैं कि जहाँ मेरा भक्त है वहीं पर मेरा निवास है। तो आप बताइए, आप कहाँ आप दो हाथ से पकड़ेंगे, है ना। ठीक है, कभी कभी मन में होता है कि मैं भोग की तरफ चला जा रहा हूँ, तो भी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने यहाँ पे आरती में किया है क्या, कायेन मनसा वाचा कर्मणे इंद्रिये वा, आगे क्या है आप बताइए। हाँ आगे बताइए, सकलम करोमि। तो फिर
ये जो मेरी इंद्रियां हैं, ये जो मेरा जो कुछ भी मैं है, ये मैं तेरा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये इसीलिए इन्हीं चीजों का चिंतन करना चाहिए कि ये जो मैं आखिर सोच के देखिए तो, अगर मान लो किसी का हाथ कट जाता है, जब तक मैं कर रहा था, ये हाथ मेरे हाथ के साथ था, अभी ये कटने से भी ये हाथ को मैं अलग कर दिया फिर इसका मतलब मैं तो मुझसे अलग है, मैं ये नहीं है। सबसे और एक मजे की बात बोलता हूँ कि हमारा स्वरूप इतना विशाल है, हम अपनी अज्ञान की दृष्टि के कारण अपने आप को ईश्वर का स्वरूप इतना बड़ा मानते हैं। अरे तुम विशाल अनंत आत्मा हो, बार बार उपनिषद बोलते हैं। कश्चित धीरः प्रत्यक्ष आत्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। अमृत की इच्छा करने वाले लोग कश्चित धीर माने क्या होता है? हीरो जिसको आजकल के जमाने में हीरो पसंद करते हैं, उपनिषद भी हीरो पसंद करता है, पर वो क्या कहता है? वो हीरो ऐसा होता है अपनी इंद्रियों को अंदर में समेट लेता है, अपने आप को संसार के आकर्षणों से समेटकर अपने आप को अमृत के संधान में लगा देता है। हम तो बोलने वाले क्या करें, बोलते ही रहते हैं, तो थोड़ा अभ्यास बोलने का ही ज्यादा है। अभी कहेंगे भूख लग रही है, बोलो ही नहीं, कभी गदा भी मारो। ચલો આજે આપણને ના માઈક લેવા આપણને બહુ સરસ લાભ મળ્યો। स्वामी जी से मैं विनती करूंगी कि ऐसा लाभ हमें और दूसरी तीसरी बार मिले। वापस जाते वक्त भी आप आ जाइए और एक एक अक्षर याद नहीं रहेगा, लेकिन बहुत कुछ याद रह गया है और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। अपने हमारे बगीचे के छोटे फूल पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मामा क्या कर रहे? आनंद में रहिए। ભરતભાઈ जरूरी છે તો જમ્યા પછી બેસીએ। ફાવતું હોય તો મને મને કઈ વાંધો જમીને પછી પાછા અહીંયા આગળ ત્યાં બેસીશું અને થોડા ભજનનો લાભ સત્સંગનો લાભ લઈશું। खाना खाने के बाद मारुड़ी बोलो। अरे जी बोलते खाना खाने के बाद। अभी इंटरवल हो गया, आप लोग चाय पानी अल्पाहार करके आइए। अल्पाहार नहीं, पूरा आपके साथ में जाएंगे, आपकी बराबर है। करोड़ी जाना कि करोड़ी विधान वगैरह आपकी थ्योरी में है कि नहीं? अरे अच्छा, थोड़ा प्रणाम कर लेते।